various types of queue. तो जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए, we have to discuss about certain types of queue. Like first we discuss about the circular queue. Circular queue, so we just implement circular queue by the help of array, and the same can be implemented by linked list also, circular queue. Then we discuss about the DQ. DQ, that is double-ended queue. Double-ended queue. Then we discuss rarity queue. So as we already discussed the implementation of queue using linked list as well as array, so we can implement any types of queue by the help of linked list as well as array. So you can implement is by using pointer or by using array. So circular queue, as per the name is concerned, today first of all we discuss the circular queue. Now basically, what do you mean by circular queue? Anyone have any idea about, as per the name is concerned, circular queue? Vinayak, rest of the student also on your video. Okay. Sir, actually, sir, I don't have exact idea, but somewhere I have read that in circular queue, the elements are arranged in the form of circles, sir. And the rear position and the front position, which in queue have, are arranged in fact. As you say that circular case में circular mode में रहेगा element. So we have a particular circle, like circle in this particular way. So in this, why it is circular? In circular queue, what is the basically? तो आप यहाँ से अगर 0 से start कर रहे हैं, तो you just move one by one, allocation आपका move करेगा, और move करते करते 0 के पहले you have n-1, ठीक है ना? तो if the list size of the list is n, size of the list is equal to n, then you already have you have a concept that the lower bound is LB is 0 and upper bound is size n-1. So both starting position and ending position is one after another. Yani after the ending position, you will reach the starting point. So in circular queue, this is the particular sequence in which the particular element is arranged. तो element आपका जो होगा वो इसी sequence में arrange होगा. अब यहाँ पर क्या है? Whenever we discuss the circular queue, that means we have to think about specific types of rules to allocate the data inside the queue and to deallocate or delete the data from the particular queue. So allocation or insertion or deletion should take place in a specific manner. So specific manner क्या होगा? We have to check out the starting and ending position, because now आपका जो front और rear है वो अब यहाँ fix नहीं है. Swarab Gupta is from your batch. Is from batch 1, sir. Yes, sir. तो अब सर्कुलर क्यू में क्या है कि अभी हम लोग इनिशियली जब एरे इम्प्लीमेंटेशन क्यू किए तो वी जस्ट इनिशियलाइज -1 टू द फ्रंट एंड रियर पोजीशन ऑफ द क्यू, बट इन दिस केस योर फ्रंट मे एग्जिस्ट आफ्टर द रियर. रियर के पहले भी आपका फ्रंट आ सकता है. मे बी n-1 इज योर फ्रंट एंड 0 इज योर रियर, ऐसा हो सकता है. तो we have to check out the specific condition for insertion also as well as for deletion also, which is not checked in case of general queue. General queue में हम लोग केवल front को deletion के लिए चेक कर रहे थे और rear को insertion के लिए चेक कर रहे थे. ये rear कहीं final end पर तो नहीं अप्रोच कर रहा है, यानी n-1th लोकेशन तक तो rear नहीं पहुंचा है. लेकिन अब यहाँ पर n-1th ही आप यानी upper bound is not only responsible for holding rear position.
रियर पोजीशन आपका कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पर हो सकता है, तो आप n-1 को केवल चेक नहीं करेंगे, n-1 के अलावा यानी max-1 हम लोग चेक किए थे वहां पर, क्योंकि हमको पता था कि जनरल क्यू में max-1 अगर पोजीशन होल्ड कर रहा अपर बाउंड, तो उस केस में पर्टिकुलर आपका जो है लिस्ट फुल है। लेकिन यहाँ पर रियर को n-1 से अगर चेक करेंगे तो वो केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट और रियर जो है वो कॉन्करेंटली चेंज होगा और कहीं पर भी किसी लोकेशन पर होगा, क्योंकि ये आपका लीनियर क्यू नहीं है, सर्कुलर क्यू है। तो लीनियर क्यू में क्या है कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आपका जो है क्यू जो है वो डिलिमिटेड हो जाएगा, वहां पर क्यू का जो है इंसर्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस आपका टू बी कंटिन्यूड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही n-1th पोजीशन पर आपका रियर होगा, तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, n-1 से आगे सर्कुलर बनाने के लिए क्या होगा, हमको रियर को फिर आगे बढ़ाना होगा, 0 करना पड़ेगा। तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर रियर max-1 पोजीशन पर है तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रियर इज असाइंड बाय 0 बिकॉज इट इज अ सर्कुलर क्यू। तो अब ये फिर 0 से आगे बढ़ेगा 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि डिलीशन और इंसर्शन वो जो है फ्रीक्वेंटली होगा, कभी डिलीशन करेंगे कभी हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हियर what is n-1th is what, here n-1th element Here. Element after, not here, after n-1th element, after n-1th element कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0th element, 0th element. 0th element occurs। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर क्यू है, तो n-1 के बाद आपका 0 आ रहा है। n-1 के बाद 0 आने का मतलब है कि आफ्टर लास्ट एलिमेंट ऑफ ए क्यू द फर्स्ट एलिमेंट विल occur। That means what is the conclusion in for the circular queue? What is the conclusion? Conclusion is कि after the last element of Q, after the last element of the Q, the first element will occur। इसका मतलब है कि आपका n-1 के बाद फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि योर क्यू इज सर्कुलर। तो यू हैव टू चेक आउट द कंडीशन फॉर रियर इक्वल टू max-1 फॉर असाइनिंग द न्यू वैल्यू ऑफ रियर। तो रियर इक्वल टू max-1, अगर रियर max-1 पोजीशन को है तो आपका रियर कैसे चेकआउट होगा, यानी कि रियर को आपको 0 एलोकेट करना पड़ेगा। उसी तरह से फ्रंट के केस में भी आपका ऐसा हो सकता है कि फ्रंट भी आपका अगर max-1 पोजीशन पर है तो फ्रंट आपका नेक्स्ट फ्रंट क्या बनेगा, यानी डिलीशन के बाद फ्रंट आपका क्या होगा, 0। हाँ, तो यू हैव टू चेक आउट द फ्रंट एज वेल एज रियर इन ए सर्कुलर मैनर। तो यू हैव ऑलरेडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू ऑपरेशंस, तो वी जस्ट डिस्कस द ऑपरेशंस इनिशियली, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस द ऑपरेशन, देन वी टेक द एग्जांपल। तो ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू फर्स्ट वी डिस्कस, ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। वी जस्ट टेक द एरे टू इम्प्लीमेंट द सेम। तो 3 ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू के लिए। इंसर्शन ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू, then deletion operation, circular queue, then traversal operation, on circular queue. So first we discuss इंसर्शन ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। तो इंसर्शन ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना होगा, वी हैव टू चेक आउट। आप जो जनरल क्यू हम लोग डिस्कस किए वहां पर आपका रियर max-1 को अगर अप्रोच कर लेता है तो आपका फर्दर इंसर्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि max-1 के बाद फिर से रियर 0 असाइन हो सकता है, यानी अगर max-1 है, चूंकि क्यू आपका सर्कुलर है
और रियर अगर मैक्स माइनस 1 पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो यू हैव टू चेक आउट द रियर एंड परफॉर्म इंसर्शन ओवर देयर। तो रियर अगर आपका मैक्स माइनस 1 है तो नाउ रियर इज असाइंड बाय 0, तो वी हैव टू चेक आउट द रियर। हाँ बोलिए So right now you said that if rear is equals to max minus 1, then we will assign 0 to rear. So how is it possible, sir? how is it possible? We make it I'm possible. not getting sure. How is it possible? We make it possible. ठीक है ना, कि हम इसको पॉसिबल बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज इन सर्कुलर क्यू वी हैव टू ट्रीट द वी हैव टू परफॉर्म इंसर्शन आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑल्सो। तो आफ्टर मतलब जो आपका जो डिलिमिटेशन था, दैट डिलिमिटेशन इज ओवरकम इन दिस पर्टिकुलर सर्कुलर क्यू। जनरल क्यू में क्या डिलिमिटेशन था कि आफ्टर अप्रोचिंग द रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1, हो सकता है कि रियर मैक्स माइनस 1 अप्रोच करने के बाद आपका रियर के पहले फ्रंट से डिलीट करने के बाद बहुत सारा स्पेस वैकेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यही एक एरे जनरल क्यू का डिमेरिट क्या था उसको एक बार देखिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा है, आपका जो रियर है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये रियर अभी है, इसके पहले सारा फ्रंट आपका डिलीट हो चुका है। तो फ्रंट और रियर जो दोनों एक ही जगह पर है, अभी आपके पास स्पेस है, बट वेदर देयर इज ए चांस टू एलोकेट न्यू एलिमेंट इन द वैकेंट स्पेस, नो, बिकॉज रियर इज ऑन मैक्स माइनस 1 पोजीशन, तो फर्दर इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल इन जनरल क्यू। बट इन सर्कुलर क्यू यू हैव ए स्कोप टू एलोकेट द डेटा इफ द प्रीवियस लोकेशन इज वैकेंट। तो यहाँ पर क्या है कि सारा डेटा डिलीट होने के बाद भी आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो रियर पोजीशन को होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि इसके पहले आपने डिलीशन परफॉर्म किया हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स डिलीशन हुआ तो 1 2 3 4 5, यानी 5 वैल्यू आपने डिलीट कर लिया है और इसके बाद इंसर्शन करना चाह रहे हैं, तो इंसर्शन तो आपका रियर एंड से ही होगा जनरल क्यू में। तो अब आपके पास स्पेस तो है लेकिन एलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं। जनरल क्यू में ये डिलिमिटेशन था, तो स्पेस होते हुए भी यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू एलोकेट द न्यू एलिमेंट इन द वैकेंट स्पेस। तो एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि रियर जो है वो आपका मैक्स माइनस 1 पोजीशन यानी कि एंड पोजीशन को पर अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर क्या है, सर्कुलर क्यू में अगर आपका एंड पोजीशन यानी n माइनस 1 पोजीशन पर आपका रियर होगा तो आप क्या करेंगे, इसके बाद रियर इसको एलोकेट कर देंगे 0 इंडेक्स पोजीशन। हाँ, तो रियर को 0 एलोकेट करने से क्या होगा कि ये जो वैकेंट स्पेस जो आपका है यहाँ पर फिर से आपका न्यू रियर ये बन जाएगा। तो इसलिए बोले कि यहाँ पर रियर आपका कोई जरूरी नहीं है कि मैक्स माइनस 1 को ही केवल चेक करेंगे। अगर रियर मैक्स माइनस 1 को होल्ड कर रहा है तो रियर में 0 असाइन करके इस पर्टिकुलर पोजीशन पर भी हम वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं, विच इज नॉट इन केस ऑफ जनरल क्यू। इन जनरल क्यू वी हैव नो स्कोप टू एलोकेट द डेटा वंस द रियर पोजीशन होल्ड द वैल्यू, यानी रियर अगर जो है रियर पोजीशन होल्ड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ मैक्स माइनस 1 लोकेशन। तो रियर का अगर पोजीशन मैक्स माइनस 1 पर हो गया तो इसके बाद फर्दर आपका यहाँ एंट्री स्टॉप हो गया। अब ये मैटर नहीं है कि यहाँ पर जगह है या नहीं है, जगह होने के बाद भी आप इस केस में एलोकेट नहीं कर पा रहे थे। जो चीज यहाँ पर आपको पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा, यानी इंसर्शन ऑपरेशन सर्कुलर क्यू में करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we check that rear is at n minus 1th, that is n minus 1th position। अब n minus 1 अगर n का वैल्यू मैक्स को एलोकेट करेंगे तो मैक्स माइनस 1, तो इफ रियर इज इक्वल टू n minus 1, दैट मीन्स रियर अगर n minus 1 है को अप्रोच कर रहा है, देन क्या हो जाएगा, देन वी सेट द रियर जो अभी हम लोग डिस्कस किए, देन वी सेट द रियर वैल्यू, क्या सेट करेंगे, 0 सर। सेट द रियर वैल्यू 0, यानी कि रियर इक्वल टू 0 करेंगे एंड ऐड द एलिमेंट कहां पर ऐड होगा, at the 0th index position, at the 0th position of the क्यू। यानी कि अगर आपका रियर मैक्स माइनस 1 पोजीशन को होल्ड कर रहा है
तो आपको रियर में 0 असाइन करना होगा। ये चीज हम लोग फंक्शन में लिखेंगे और उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको पोजीशन ऑफ द क्यू। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो कहाँ होगा, अदरवाइज जैसे करते थे वैसे ही, केवल यही एक कंडीशन हमको चेक करना है सर्कुलर क्यू में। बाकी जैसे आप जनरल क्यू में कर रहे थे वैसे ही, यानी कि आपका रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 होगा, यानी रियर जो आपका पहले से है उससे एक ज्यादा होगा, लेकिन एलोकेट करने से पहले रियर को सेट करेंगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज एलिमेंट विल बी एडेड वेयर, अदरवाइज एलिमेंट विल बी एडेड, कहां पर ऐड होगा, at rear rear plus होल्ड 1, करना, एडेड एट द rear plus हाँ, एज लाइक सिंपल क्यू, ठीक है ना। तो जैसे सिंपल क्यू में रियर एंड पर ऐड होता है, तो रियर एंड को पर ऐड होने के पहले क्या करते हैं हम, कस्तूम rear को बढ़ाते हैं सर, रियर इक्वल टू rear को प्लस 1 करते हैं, और फिर क्यू का रियर पोजीशन पर हम जो है आइटम को असाइन कर देते हैं, दैट इज द पर्टिकुलर। बट इन दिस केस इंसर्शन में केवल ये जो पहला पॉइंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि आपका जो रियर है वो n-1 तो नहीं है, ठीक है ना। अगर रियर n-1 पर होगा तो उस केस में हमारा इंसर्शन रियर इक्वल टू 0 करने के बाद होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हियर फर्स्ट वी आर चेकिंग द ओवरफ्लो कंडीशन। ये कंडीशन केवल जो मेंशन किए, ये कंडीशन केवल स्पेसिफिक न्यू कंडीशन होगा जो सर्कुलर क्यू के लिए हम लोग देखेंगे। बाकी जो कंडीशन जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हियर, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हियर फर्स्ट वी checked for overflow condition, तो ओवरफ्लो कंडीशन के लिए क्या चेक करेंगे, कौस्तु बताइए। ओवरफ्लो रियर कंडीशन इज इक्वल टू m-1 चेक करेंगे सर, मैक्सिमम -1। यस, तो इफ यहाँ पर फ्रंट अगर हमारा इक्वल टू 0 हो, एंड ओवरफ्लो कंडीशन आपका यहाँ दो केस बनता है कि फ्रंट अगर 0 है और रियर जो है ये इक्वल टू मैक्स -1 होगा, ये कंडीशन आप लेंगे, ऐसा लेंगे ना। यस सर। हाँ, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू मैक्स -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपका फ्रंट हो जाएगा और ये आपका रियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटायर डेटा आपका एलोकेटेड है। फ्रंट 0 है तो आप रियर को 0 नहीं बना सकते हैं। तो अगर ये केस आपका होगा, अगर फ्रंट 0 है और रियर n-1 मैक्स -1 है, तो उस केस में आपका ओवरफ्लो कंडीशन है। इसका मतलब है कि सर्कुलर क्यू में भी आपका इंसर्शन नहीं हो सकता है। तो पहला कंडीशन। दूसरा और कौन सा कंडीशन हो सकता है, दूसरा, चूंकि ये सर्कुलर क्यू है तो जरूरी नहीं है कि आपका मैक्स -1 और 0 हमेशा फ्रंट हो और ये आपका मैक्स -1। फ्रंट आपका कहीं पर भी हो सकता है। सपोज ये आपका फ्रंट है, ठीक है ना, दिस वन इज द फ्रंट एंड दिस वन इज द रियर। यहां भी रियर हो सकता है, ये 2 में आपका फ्रंट है तो 1 में भी रियर हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है तो आप जब रियर मैक्स -1 है तो रियर 0 बना रहे हैं और उसके बाद आपका फ्रंट 1 पर है, तो आप इस केस में क्या होगा, ये फ्रंट और रियर, यानी कि अगर आपका फ्रंट रियर में एक जोड़ने से मिल जाता है तो ये भी एक कंडीशन है कि आपका जो क्यू है सर्कुलर क्यू फुल है, ठीक है ना। चूंकि ये n-1 और 0 का जो कॉन्सेप्ट है ये तो कहीं पर हो सकता है ना, ये 2-3 के बीच में भी हो सकता है, 3-4 के बीच में भी हो सकता है, 3 और n-1 के बीच में भी हो सकता है। जो हम लोग यहाँ लास्ट और शुरू को चेक कर रहे हैं, जनरल क्यू के केस में हम लोग चेक करते हैं तो उसके केस में यहाँ चेक किए, पहला। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि आपका जो फ्रंट है वो इक्वल टू रियर +1 हो, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हम लोग लेंगे यहाँ पर। एक तो ये जनरल कंडीशन है जो जनरल क्यू में भी चेक करते हैं कि 0 और मैक्स -1 के बीच में हो। दूसरा, फ्रंट रियर +1 इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलर क्यू में
सर्कुलर क्यू में ये रियर कहीं भी हो सकता है, फ्रंट कहीं भी हो सकता है। अगर रियर जो है वो फ्रंट जो है वो रियर में एक जोड़ने से मिल रहा है, इसका मतलब है तब भी आपका क्यू फुल है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिए रियर 0 और 1 के केस में, ऐसा भी हो सकता है कि रियर आपका जो है ये रियर आपका 2 पर हो और फ्रंट आपका 3 पर हो, तो ये भी आपका क्यू फुल है तब होगा ऐसा। तो ये फ्रंट और रियर कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी फ्रंट अगर रियर +1 करने से मिल रहा है, इसका मतलब है कि क्यू आपका फुल है। तो ये दो कंडीशन हम लोग चेक किए, फ्रंट यानी ओवरफ्लो कंडीशन के लिए हम लोग ये दो कंडीशन चेक किए। पहला कि फ्रंट अगर 0 है और रियर max-1 है तो आपका फ्रंट क्यू फुल होगा, और फ्रंट में अगर रियर +1 करने से अगर फ्रंट मिल रहा है तब भी आपका क्यू फुल होगा। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा अगर होगा ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो प्रिंट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पर अराइज हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है, ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, तो हमको क्या चेक करना होगा कि आपका क्यू इनिशियली खाली तो नहीं है। जो दो चीज हम लोग चेक किए थे जनरल क्यू में, अगर खाली होगा तो आपका जो है जो आप पहला एलिमेंट डाल रहे हैं वही आपका पहला और लास्ट बनेगा। तो पहला, दूसरा चीज हम लोग को यहाँ चेक करना है, इनिशियली आफ्टर चेकिंग द ओवरफ्लो कंडीशन वी हैव टू चेक इनिशियली क्यू इज एम्प्टी, ठीक है ना। इनिशियली या इफ इनिशियली क्यू इज एम्प्टी, अगर इनिशियली क्यू एम्प्टी होगा देन क्या होगा, आपका फ्रंट और रियर दोनों में -1 होगा, क्योंकि आप एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एरे में फ्रंट और रियर को -1 इंडेक्सिंग के लिए यूज किए होंगे। तो अगर इफ इनिशियली क्यू इज एम्प्टी, फुल नहीं हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, अगर इनिशियली क्यू एम्प्टी है तो जो पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे वही आपका फ्रंट बनेगा और वही रियर बनेगा। तो इफ इनिशियली क्यू इज एम्प्टी देन क्या करना पड़ेगा आपको, देन वी सेट द वैल्यू 0 to both front and rear, यानी कि 0 जो वैल्यू है वो फ्रंट और रियर दोनों के लिए करना होगा, एंड at the element at the rear end of the queue. It is clear? लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो अदरवाइज, यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्यू इनिशियली एम्प्टी नहीं है, तो अदरवाइज जो जनरल प्रोसेस है, अदरवाइज वी इंक्रीज, पहले रियर को बढ़ाते हैं, रियर वैल्यू बाय 1, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रियर, ठीक है ना, रियर का वैल्यू करेंगे रियर ओनली, एंड देन वी डू नॉट मॉडिफाई द फ्रंट। इस अदरवाइज केस में हम फ्रंट को मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो अदरवाइज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रियर ओनली एंड देन ऐड द एलिमेंट and then add the element on the rear end of the queue. इसका मतलब यहाँ पर क्या चेक किए हम लोग, what is the condition here we check in this particular case, here we check if front is equal to -1, अगर front equal to -1 है, इसका मतलब क्या है, क्यू आपका इनिशियली एम्प्टी है, एम्प्टी है इसलिए फ्रंट चेकआउट नहीं हुआ है। तो फ्रंट इक्वल टू -1 का मतलब है कि क्यू में कोई भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों में 0 असाइन कर देंगे, क्योंकि आपका जो नया एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पर एलोकेट हो रहा है और वही पहला और लास्ट एलिमेंट होगा। जैसे विनायक को हमने बोला कि क्यू में खड़े हो, तो विनायक आपका लास्ट और फ्रंट दोनों बनेगा, यानी कि फ्रंट और लास्ट दोनों। कौस्तुभ को अगर बोल दिए कि दूसरा एलिमेंट, तो अब दूसरा एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कंडीशन, यानी कि अगर पार्शियल इनिशियली एम्प्टी नहीं है तो एक भी एलिमेंट होगा, यानी विनायक है, कौस्तुभ को ऐड करना है। पहले क्या था, कोई नहीं है तो केवल विनायक को ऐड किए, अब विनायक है, कौस्तुभ है, फिर गौरव को ऐड करेंगे। तो अब ये जो आपका एडिशन हो रहा है इसमें क्या है कि एटलीस्ट एक या एक से अधिक नोट आपका एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है,
और नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको आप इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोग इसको फ्रंट और रियर दोनों को चेकआउट किए रियर से 0 से। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रियर ओनली, तो हम केवल रियर को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर रियर को इंक्रीज करेंगे, उसके लिए फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर सर अगर हम लोगों को सर वो चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रंट का वैल्यू रियर +1 तो नहीं है। अगर फ्रंट का वैल्यू रियर +1 होगा तो सर हम लोग इंसर्शन फिर नहीं कर पाएंगे। वो तो पहले चेक कर लिए, उसके लिए नहीं करना है। फ्रंट का वैल्यू रियर +1 को नहीं चेक करना, वो तो अगर कहीं भी होगा तो उस केस में आपका रियर बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रियर को कब चेक करना है? हमको रियर को चेक करना है जब वो मैक्स -1 पोजीशन पर होगा, क्योंकि जब मैक्स -1 पोजीशन पर होगा तब हमको रियर को 0 करना पड़ेगा। अगर फ्रंट -1 नहीं है तो एल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्स में हमको क्या चेक करना पड़ेगा? एल्स में वी हैव टू चेक इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1। अब ये मैक्स -1 ये सब ग्लोबल वेरिएबल जो ऐसे एरे में हम लोग लेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेंगे। तो अगर रियर इक्वल टू मैक्स -1 है तो उस केस में क्या होगा? रियर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर रियर इक्वल टू मैक्स -1 नहीं है, इसका मतलब रियर समवेयर बिफोर मैक्स -1 पोजीशन पर होगा या कहीं पर भी होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे? रियर को सिंपली रियर +1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्स पार्ट आपका क्लोज होगा। अब आपके पास रियर पोजीशन मिल गया किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर, यू हैव ए रियर पोजीशन। तो फाइनली क्या करेंगे? ऐड द एलिमेंट on the rear position of the Q। तो जो भी आपका Q एरे होगा, जैसे हम लोग स्टैक एरे लिए, Q एरे लिए, तो Q एरे में आप यहाँ पर एक्चुअली क्या करेंगे? यू जस्ट असाइन द आइटम, वट एवर आइटम यू हैव। तो सपोज करो कि CQ नाम का कोई एरे है, तो इसके रियर पोजीशन पर हम आइटम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ जस्ट राइट द फंक्शन बाय योरसेल्फ। हम चाहेंगे कि आप खुद से लिखिए। I just give you 1 minute time to write the function for this circular Q insertion operation, because we already discussed the algorithm. So you just follow this algorithm and write the function by yourself. ठीक है ना? फंक्शन लिखिए। पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करिएगा। इसमें आपका आइटम जो है वो एक इनपुट होगा। बाकी ओवरफ्लो कंडीशन के बाद फिर फ्रंट को चेक करिएगा, -1 तो नहीं है। फिर आप चेक करिएगा कि रियर जो है वो लास्ट लोकेशन पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ डेटा को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर फिर से एड करना होगा। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में जैसे आप मैक्स के लिए एक मैक्स को एलोकेट करिएगा 100, सपोज 50। एक सर्कुलर क्यू आप लीजिएगा जो मैक्स के अकॉर्डिंगली होगा। इसके बाद 2 वेरिएबल है, एक फ्रंट और इक्वल टू रियर। इसको -1 से इनिशियलाइज करिएगा, ये आपका फंक्शन में यूज होगा। तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे। तो सर्कुलर क्यू एक एरे होगा, फ्रंट और रियर -1 होगा, एंड देन यू इनिशिएट द पर्टिकुलर फंक्शन। बोलिए, बना लिए?
नो सर, अंडर फ्लो कंडीशन को एक बार समझिएगा सर। अंडर फ्लो अंडर सर, ओवरफ्लो हम चेक कर वो तो समझ गए सर। अंडर फ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन, ये वाला समझ गए सर। अच्छा अंडर फ्लो, ये नहीं समझे हैं। अंडर फ्लो, यस सर, ये ठीक है। अंडर फ्लो का मतलब है कि सपोज ये सर्कुलर क्यू है, ठीक है ना, ये सर्कुलर क्यू है। यस अगर हाँ इनिशियली जब हम लोग क्यू बना रहे हैं वही इसी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में लिख रहे हैं ना, ग्लोबल में हम ये एज्यूम कर रहे हैं तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा इनिशियली जो क्यू है उसका फ्रंट और रियर -1 है। तो अगर आपका क्यू नहीं होगा, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तब ये फ्रंट रियर -1 ही होल्ड रहेगा, क्योंकि एरे में आपका पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब एरे अभी इनिशिएट ही नहीं हुआ है। तो उसी के लिए ये दूसरा केस है कि अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब है कि अभी कोई एलिमेंट आपने एलोकेट ही नहीं किया है, तो फ्रंट -1 है, ठीक है ना। अब ये Sir, हाँ यस I have sent you on the WhatsApp, on your WhatsApp, sir. अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा अटेंडेंस ले लो। और इसका फंक्शन का बॉडी कहाँ है जी? ऊपर में ना फंक्शन आप मेंशन किए हैं ना फंक्शन क्लोज हुआ है। आइटम कहाँ इनपुट लिए हैं? वो तो हम स्ट्रेटजी लिख रहे हैं ना, आपको जब फंक्शन लिखिएगा तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा ना विनायक। Yes, sir, yes, sir. फंक्शन इनिशिएट नहीं किया आप। यानी सर, अंडर फ्लो कंडीशन समझिए सर। हाँ अंडर फ्लो कंडीशन हाँ बोलिए। सर, अंडर फ्लो कंडीशन सर समझिए वो। ये फ्रंट इक्वल टू -1। सर नीचे सर जैसे कि एल्स पार्ट में इफ रियल इक्वल टू मैक्स -1 और रियल 0 और इधर एल्स पार्ट। हाँ सर यहाँ रियल इक्वल टू मैक्स -1 क्यों नहीं सर एल्स पार्ट में? रियर इक्वल टू मैक्स -1 क्यों लिखे हैं ये पूछ रहे हैं ना? यस सर। हाँ रियर इक्वल टू मैक्स -1 इसलिए लिए है कि अगर फ्रंट -1 नहीं है इसका मतलब कि एलिमेंट होगा उसमें। यस सर। अगर एलिमेंट होगा तो आपको ये चीज चेक करना, एलिमेंट होगा तो आपका हो सकता है ना कि एलिमेंट आपका रियर जो है वो मैक्स -1 पोजीशन पर चला गया हो। इंसर्शन तो पहली बार आप ये जूम करके नहीं चलेंगे, पहली बार इंसर्शन कॉल हुआ होगा, नंबर ऑफ टाइम्स इंसर्शन कॉल होगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि रियर आपका मैक्स -1 पोजीशन को होल्ड कर रहा हो। सर्कुलर क्यू है ना, तो हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि आपका फ्रंट से डिलीशन हुआ और रियर आप बढ़ते बढ़ते मैक्स -1 पोजीशन पर चले गए। तो चूंकि आपका ये सर्कुलर क्यू है तो ये क्यों चेक कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू के बेसिस पर चेक कर रहे हैं कि अगर आपका रियर मैक्स -1 पोजीशन पर चला गया और 0th लोकेशन पर आपका कोई डेटा नहीं है तो हम रियर को 0 असाइन कर सकते हैं। रियर को 0 असाइन करने का मतलब है